Okay, see, in the last lecture, we have done about the, let us revise. In the last lecture, we have done the results of the Bohr's theory. Means by using Bohr's theory, we can calculate the radius of the orbit, and radius of the nth orbit is given by which formula? A0 into n square upon z. Then, second thing, we calculate the energy of the electron in the nth orbit, and energy of the electron in the nth orbit is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 z square upon n square joule per atom. Then this is value in what? Electron volt per atom, minus 13.6 into z square upon n square electron volt per atom, and this value is in kilojoule per mole, and this is in erg per atom. Then we also seen that this is the value we have seen, energy of the electron in the first orbit in electron volt, energy of the electron in the second orbit in electron volt. First orbit, second orbit, third orbit, and fourth. Energy of the electron in the first orbit, n equal to 1. How much we used to have? Minus 13.6 electron volt. Energy of the electron in second orbit is minus 3.4 electron volt. Energy of the electron in the third orbit minus 1.5 electron volt, and energy of the electron in the fourth orbit is minus 0.85 electron volt. Okay, this part we have seen last time. The electron, energy of the electron in the first orbit, energy of the electron in the second orbit, energy of the electron in the third orbit, and energy of the electron in the fourth orbit. And all these values are in which unit? Electron volt, correct? We have seen in different unit. We have seen energy in the joule, in electron volt, in kilojoule, and in erg. Then we have also seen the velocity of the electron. The velocity of the electron revolving in the orbit is given by which formula? Vn into Vn equal to V0 into Z upon N. And the velocity can be measured in meter per second, or it can be measured in what? Centimeter per second. So these formulas we have done, and we also done some numerical based on it, correct? Now we'll be going for the next part, that is here the heading is atomic spectrum, or we can call it as hydrogen spectrum. Either you can call it as the atomic spectrum, or you can call it as the hydrogen spectrum. Now, basically what is spectrum here? See, suppose we are having a prism. And through prism, suppose we allow the normal light to fall on the prism, normal light. And normal light is called as a white light. White light means what? The light which we get from the sun, sunlight, or light which we get through the ordinary tube or bulb are called as a white light. And when we allow the white light to pass through the prism, then you know what happens? This white light split up into 7 colors. The white light split up into 7 color, and for 7 color we get, and we know 7 color we call them as what? Vibgyor. 7 color. And all colors are merged into each other. All colors are merged into each other. And when all colors are merged into each other, this what we get here are called as the spectrum. Spectrum.
Even we get the rainbow. Rainbow is also a spectrum, and this spectrum is called as a continuous spectrum. मतलब अगर हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो प्रिज्म से जो बाहर लाइट निकलेगा वो 7 कलर में हमें दिखाई देगा. 7 color is a combination of the Vibgyor, and these 7 color are merged into each other. So this is called as a continuous spectrum. Why continuous? Because all lines, all are merged into each other. All lines are merged into each other. All colors are merged into each other. And that's why it is called as a continuous spectrum. Okay, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अगर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंटेनर है और कंटेनर में अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस अगर यहाँ पे ले लिया, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस के ऊपर अगर कुछ लाइट्स वगैरह पास कर दिया, तो यहाँ पे जो हमें एमिटेड लाइट जो मिल रहे थे और ये लाइट्स को हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्डेड किया. दिस इज कॉल्ड एज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड द स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोग्राम. Name of the instrument which records the spectra are called as a spectrogram. तो हमें यहाँ पे क्या मिला, देखो ये नॉर्मल लाइट है, या आप लाइट पास कर सकते हो और मे बी आप हीट सप्लाई कर सकते हो, कुछ भी दोनों में से एक. आइदर यू कैन पास द लाइट और यू कैन हीट द हाइड्रोजन गैस, दोनों में से कोई एक. मतलब हाइड्रोजन गैस में से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, लाइट पास कर रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस को हम लोग हीट कर रहे. तो उसे पता क्या यहाँ पे क्या हमें ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि जब लाइट हाइड्रोजन गैस से पास करेगा तो यहाँ पे हमें कुछ कलर दिखाई दे रहे थे. नॉर्मली हम यहाँ पे कितने कलर दिख रहे थे, 7 कलर, 1 2 3 4 5 6 7. बट यहाँ पे कुछ कलर ही हमें दिखाई दे रहे थे और बीच में कुछ कलर मिसिंग थे. कुछ कलर दिखाई दे रहे थे, कुछ कलर मिसिंग थे. मतलब मे बी फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे वायलेट कलर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, रेड कलर दिखाई दे रहा है, बाकी कलर मिसिंग थे. और ये जो हमें स्पेक्ट्रा यहाँ पे मिला, उस स्पेक्ट्रा को हम लोगों ने नाम दिया था लाइन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम मतलब हमें यहाँ पे कंटिन्यूस लाइंस नहीं मिल रहे थे, बीच बीच में कुछ लाइंस मिल रहे थे, कुछ लाइंस नहीं मिल रहे थे, इसलिए इसका नाम दिया था लाइन स्पेक्ट्रम. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज discrete lines, or is also called as what, discrete line. discrete मतलब ये लाइन है, बीच में कुछ नहीं है, बाद में दूसरा लाइन है, बीच में कुछ नहीं है, बाद में थर्ड लाइन है. तो ऐसे अलग अलग हमें लाइंस दिखाई देते हैं, इसलिए लाइन से. सो because we are getting the line, so it is called as a line spectra, or it can be called as a discrete line or discrete line spectra. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि अगर हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीट सप्लाई करेंगे या हाइड्रोजन गैस से अगर कोई लाइट पास करेंगे तो यहाँ पे हमें जो स्पेक्ट्रा मिल रहा था वहां पे सारे कलर हमें दिखाई नहीं दे रहे थे. कुछ कलर दिखाई दे रहे थे, कुछ कलर दिखाई नहीं दे रहे थे, पर जो भी कलर हमें दिखाई दे तो सिंगल सिंगल लाइंस के फॉर्म में थे, और इसीलिए उसको नाम दिया गया लाइन स्पेक्ट्रा, और इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिस्क्रीट लाइंस. अभी ऐसे लाइंस क्यों दिखाई दे रहे थे वो हमें देखना है. ऐसे लाइंस क्यों दिखाई दे रहे थे, अलग अलग लाइंस क्यों दिखाई दे, आई एक्सप्लेन दैट पॉइंट नाउ. Now okay, normally what happen here, देखो normally अगर मैंने फॉर एग्जांपल ओके अगर मैंने फॉर और इस सबसे अच्छा मैं यहाँ पे मैं इमेज कर डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे अगर हमारा न्यूक्लियस है तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है, और ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट है. ऑफकोर्स मेनी ऑर्बिट्स आर देयर बट आई हैव जस्ट टेकन द फोर्थ. दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 4. ये लाइन नहीं है यहाँ.
ऑर्बिट है। अभी हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है मतलब अंदर क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के एटम रहेंगे और हर एक एटम के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस को जब हम लोग हीट सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन एटम, और फिर हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, इस हाइड्रोजन एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद दिल गो टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में, कोई इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे थर्ड ऑर्बिट में, कभी इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में। लेकिन वहां पे जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल हैव द हायर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम फर्स्ट एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन विल गो टू द थर्ड एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन may go to the second energy level. So electron is going to which level, higher energy level. But in higher energy level electron is unstable, हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है। तो इसीलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन वापस रिटर्न चला जाएगा नॉर्मल लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे रिटर्न चला जाएगा, ये भी नॉर्मल लेवल पे रिटर्न होगा। तो वाइल रिटर्निंग क्या होगा, इट विल एमिट एनर्जी, वाइल रिटर्निंग इलेक्ट्रॉन टू नॉर्मल लेवल इट एमिट एनर्जी, और जो एनर्जी एमिट करेगा दैट एनर्जी इज एमिटेड, उसका हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, स्पेक्ट्रा विल रिकॉर्ड एनर्जी, जो एनर्जी एमिट करेगा उसका रिकॉर्ड क्या करना है हमें, स्पेक्ट्रा। और इसीलिए इस स्पेक्ट्रा का नाम दिया गया है एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन का मतलब क्या हो रहा था, देखो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहे थे, लेकिन हमें मालूम है हायर लेवल में मतलब हायर एनर्जी लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा वो वापस अपने नॉर्मल लेवल में चला जाएगा। लेकिन नॉर्मल देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उन्होंने क्या किया था, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब while going from lower level, while going from lower energy level to higher energy level, absorb. But while returning back to the normal energy level, electron is emitting energy. Electron is emitting energy. And emitting जो एनर्जी हो, उस एमिशन एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे, और उस एनर्जी एमिटेड एनर्जी का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे, इसीलिए उस स्पेक्ट्रा को नाम क्या दिया गया, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या नाम दिया गया, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो बेसिकली एमिशन स्पेक्ट्रा क्या था कि इलेक्ट्रॉन will absorb energy and will go to the higher energy level, but in the higher energy level because of higher energy they are unstable, and because they are unstable they want to return back to the normal energy level, and while returning back to the normal energy level they are emitting the energy, और जो एनर्जी एमिट करे उसका हम स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे, और उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या बोलेंगे उसे, एमिशन स्पेक्ट्रा। तो अभी देखो यहाँ से एमिशन स्पेक्ट्रा में कैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, देखो। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो लाइंस मिल रहे थे, ये लाइंस कभी मिल रहे थे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में जा रहे थे, और हायर लेवल से जब लोअर लेवल पे रिटर्न हो रहे तो उन्होंने क्या एमिट कर दिया, उन्होंने एमिट कर दिया एनर्जी, एमिट एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी एमिट कर दिया, और जो एनर्जी उन्होंने एमिट कर दिया उसके लिए हमें यहाँ पे लाइंस मिल गए। तो ये हमारा स्पेक्ट्रोग्राम पे लाइंस मिल गए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा, आई विल रिपीट अगेन। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स थे दे हैव एब्सॉर्ब एनर्जी एंड गॉन इनटू हायर एनर्जी लेवल, but in higher energy level they are unstable, and because they are unstable there they are returning back to the normal energy level, and while returning back to the normal energy level they have emitting the energy, they have emitted the energy, and because they are emitting the energy हमें उस जो स्पेक्ट्रा वहां पे मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। now I'll explain the one by one. Suppose यहाँ here I will draw the lines,
n इज इक्वल टू 1, थोड़ा मैं यहाँ पे करता हूँ, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू इंफिनिटी। मतलब अभी हमें यहाँ पे क्या था, हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे था, फर्स्ट एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल पे चला गया, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। और जब हायर एनर्जी लेवल, हायर मतलब कहाँ पे चला जाएगा, कि हायर मतलब इट विल गो टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, it will go to third energy level, it will go to the fourth energy level, it will go to the fifth energy level and it may go to the infinity। वो infinity तक भी जा सकता है, कहाँ पे भी, मतलब बहुत सारे लाइन्स है, इन मतलब 1 2 3 4 5 इंफिनिटी। लेकिन इंफिनिटी के बाद जाने के बाद क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखो, ये हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न आ जाएगा वापस, ओके। और मे बी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से रिटर्न आ जाएगा वापस, यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से रिटर्न आएगा वापस, यहाँ तक चला जाएगा, यहाँ से रिटर्न आएगा। तो ये हमें इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया हमें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जा रहा है, सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, फोर्थ ऑर्बिट में जा रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है। और इन्फिनिटी के बाद जाने के बाद वापस रिटर्न आ रहा है, क्या कर रहा है वो, रिटर्न आ रहा है। और रिटर्न आते समय वो क्या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन, बिकॉज हमें मालूम है जब when electron jump from higher energy level to lower energy level, it emits what, energy emit करेगा, करेक्ट, एनर्जी। तो यहाँ पे हमें क्या देखा, एनर्जी एमिट करेगा, एंड वी नो दैट एनर्जी एमिटेड is given by which formula, h nu, energy emitted by the electron given by which formula, h nu, where h is called as the Planck's constant, nu is called as the frequency। मतलब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो क्या एमिट करेगा, एनर्जी, एनर्जी एमिट करेगा, मतलब उस एनर्जी को क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा तो उसका क्या रहेगा, वेवलेंथ रहेगा, बिकॉज वी नो दैट फ्रीक्वेंसी मालूम रहेगा तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, और वेवलेंथ मालूम रहेगा तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जंप होगा, एनर्जी चेंज होगा, उससे क्या पता चलेगा, एच न्यू, एच न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, एंड वी नो दैट न्यू इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू व्हाट, सी अपॉन लैम्बडा, सी अपॉन लैम्बडा। मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल में चला जाएगा, बट हायर लेवल में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल होने के कारण इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा तब उनका हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, एनर्जी कितना चेंज हुआ हमें मालूम रहेगा, क्योंकि हमें मालूम है ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है, -10 सॉरी, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी मैंने यहाँ पे लिखा था फर्स्ट, इसमें ही सेकेंड ऑर्बिट का हमारा एनर्जी कितना होता है यहाँ पे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना रहेगा, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे एनर्जी कितना रहेगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट, एनर्जी था। तो यहाँ पे एनर्जी एमिट होगा, और कितना एनर्जी एमिट हुआ है वो अगर हमें मालूम है तो एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब उन्होंने जो लाइट एमिट किया हो, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा। या अगर फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं लेकिन आपको सी स्पीड ऑफ द लाइट मालूम है, मतलब अगर यह फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच, और न्यू की जगह क्या लिख सकते हो, सी अपॉन लैम्बडा। देखो, तो अगर आपको कितना एनर्जी एमिट हुआ वो मालूम है, अगर आपको एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। या अगर आपको स्पीड ऑफ द लाइट मालूम है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे जंप करेगा तो उसने कितना एनर्जी एमिट किया हुआ है, कितना एनर्जी एमिट किया हुआ है, उसका हम लोग वेवलेंथ, लैम्बडा या फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो, एक मिनट,
तो अभी देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा तो यहाँ पे हमें जो भी वेवलेंथ मिलेगा, जहाँ पे जो भी वेवलेंथ मिलेगा या हमें जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा, दैट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कम अंडर विच रीजन? यूवी रीजन। यूवी रीजन, यूवी रीजन। यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट। हमारे पास अलग अलग रीजन है, हमारे पास अलग अलग रीजन है। अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, अलग अलग रीजन। तो यहाँ पे हमें जो भी वेवलेंथ या हमें जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो कौन से लाइट में आ जाएगा? यूवी रीजन में आ जाएगा, यूवी रीजन। और ये जो यूवी रीजन था वो किसने स्टडी किया था? साइंटिस्ट का नाम था लेमन, और लाइमन सीरीज, उसका नाम था लाइमन सीरीज। मतलब ये जो ट्रांजिशन था कि इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चला जाएगा और हायर लेवल से नॉर्मल ग्राउंड लेवल तक रिटर्न होगा, ये किसने स्टडी किया था? लाइमन सीरीज ने स्टडी किया, लाइमन ने स्टडी किया था। इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। और यहाँ पे जो भी आपको रेडिएशंस मिलेंगे, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और उस रेडिएशन का वेवलेंथ कौन से रेंज में आ रहा था? अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रहा था, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ रहा था। ओके, अभी यहाँ पे क्या देखना है हमें? अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जंप करेगा, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एनर्जी कैसा रहेगा? मिनिमम एनर्जी रहेगा, मिनिमम। क्योंकि N2 से N1 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी गिवन विल बी व्हाट? मिनिमम। लेकिन अगर एनर्जी मिनिमम रहेगा, एनर्जी अगर मिनिमम रहेगा तो वेवलेंथ विल बी व्हाट? मैक्सिमम। wavelength will be maximum, so we'll have here longest wavelength, we'll have here longest wavelength। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे? क्योंकि एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग एनर्जी मिनिमम एमिट करेंगे, मतलब वेवलेंथ कैसा रहेगा? लॉन्गेस्ट रहेगा। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। ओके, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक काम को 6 कर देता हूँ, 6, और इसे मैं कर देता हूँ इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से आ रहा है, तो इंफिनिटी के टाइम जो एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी कैसे रहेगा? मैक्सिमम एनर्जी। देखो, आपको यहां से पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाएगा तो कितना एनर्जी एमिट करेगा? 13.6। इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आएगा? 10.2 आएगा। मतलब यहां से यहां तक आने के लिए एनर्जी कितना एमिट होगा? 10.2। लेकिन इंफिनिटी से यहाँ पे आने के लिए, इंफिनिटी का एनर्जी कितना होता है? इंफिनिटी पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन का 0 होता है। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 मालूम रहेगा, ये हमारा nth ऑर्बिट है। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 0 होता है, तो 0 माइनस 13.6 करोगे तो यहां से इधर तक आने के लिए एनर्जी कितना लगेगा? 13.6 लगेगा। देखो, सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आने के लिए एनर्जी कितना रहेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा। लेकिन इंफिनिटी से यहाँ पे आने के लिए एनर्जी कितना लगेगा? तो 0 माइनस 13.6 करोगे तो यहाँ पे एनर्जी कितना लगेगा? 13.6 लगेगा, मतलब मोर एनर्जी लग रहा है। और एनर्जी अगर ज्यादा रहेगा तो जो लाइट एमिट होगा उसका वेवलेंथ कैसा रहेगा? स्मॉलर रहेगा, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एनर्जी मैक्सिमम एमिट होगा तो वेवलेंथ विल बी व्हाट? शॉर्टर। तो यहाँ पे जो हमें लाइट मिलेगा उसका वेवलेंथ कैसा रहेगा? शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टेज वेवलेंथ। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि अगर हमारा लाइट लोअर ट्रांजिशन से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ट्रांजिशन हो रहा है, तो लोअर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कैसा रहेगा? मिनिमम एनर्जी रहेगा एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रहेगा। लेकिन अगर हमारा ट्रांजिशन हायर लेवल से हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल से हो रहा है, तो एनर्जी कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। और लेकिन वेवलेंथ कैसा रहेगा? शॉर्टेस्ट रहेगा। वेवलेंथ कैसा रहेगा? शॉर्टेस्ट रहेगा। और यहाँ पे ध्यान में रखना कि लाइमन सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लाइन है, लाइमन सीरीज में ये हमारा फर्स्ट लाइन है। मतलब अगर हमें कोई बोलेगा कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लाइन से जंप कर रहा है,
फर्स्ट लाइन से जंप कर रहा है, मतलब कहाँ से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकंड से। तो ये लाइमन, देखो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन हुआ, तो ये हमारा सेकेंड लाइन हुआ, ये हमारा थर्ड लाइन हुआ। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, 2 से। क्यों, देखो यहाँ पे आई जस्ट राइट ऑन द टेबल, लाइमन सीरीज के लिए n1 इक्वल टू 1, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से भी जंप करेगा, लेकिन जंप करके कहाँ पे आएगा, n1, मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ से भी जंप करेगा, बट आएगा कहाँ पे, n1 इज इक्वल टू फर्स्ट एनर्जी लेवल। जंप कहाँ से करेगा, n2 जंप करेगा 2 से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से एंड इंफिनिटी से। तो अगर 2 से जंप करेगा मतलब ये हमारा रहेगा फर्स्ट लाइन, 3 से जंप करेगा मतलब ये हमारा रहेगा सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अगर यहां से जंप करेगा तो ये हमारा रहेगा थर्ड लाइन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने बोला कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फिफ्थ एनर्जी लेवल से, का मतलब यहां से जंप कर रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड लाइन से जंप कर रहा है, मतलब n2 कितना लोगे, 3 लोगे। देखो समझ में आ रहा है क्या? अगर मैंने बोला कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ एनर्जी लेवल से, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब n2 4 लेना है। लेकिन अगर मैंने बोला कि लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकेंड लाइन, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है और ये हमारा सेकेंड लाइन है। सेकेंड लाइन मतलब n2 कितना लोगे, 3 लोगे। कितना लोगे, 3 लोगे। आ रहा है समझ में? स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, देखो मैं अगेन आई रिपीट करता हूं थोड़ा। देखो लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा, लेकिन आएगा कहां पे, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन आएगा कहां पे, 1 पे। और जंप कहां से करेगा, सेकंड से जंप करेगा, थर्ड से जंप करेगा, फोर्थ से जंप करेगा, फिफ्थ से जंप करेगा, इंफिनिटी से जंप करेगा। अगर सेकंड से जंप करके उन्होंने दिया तो सेकंड, लेकिन सेकंड जो जंप करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन से जंप कर रहा है। अगर वो थर्ड लाइन से जंप कर रहा है तो कहां से जंप कर रहा है, सेकंड लाइन से जंप कर रहा है। और फोर्थ से जंप करेगा मतलब कहां से जंप कर रहा है, थर्ड लाइन से। तो इन द एग्जाम हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो लोग वर्डिंग कैसा करे। अगर उन्होंने वर्डिंग किया कि इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग फ्रॉम फोर्थ एनर्जी लेवल बोला मतलब n2 4 ही लेना है। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक जंपिंग फ्रॉम द थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड लाइन मतलब ये हमारा फर्स्ट लाइन, ये हमारा सेकेंड लाइन और ये हमारा थर्ड लाइन है, मतलब n2 कितना लोगे, 4 लोगे। तो ये हमारा बाल्मर सीरीज। तो ध्यान में रखना, स्मॉलर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मिनिमम रहेगा, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट रहेगा। और लार्जर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से चला आएगा और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ रहेगा। ये हमारा लेमन सीरीज। अभी इसके आगे वाला देखो, अगर मैंने सेम यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, n is equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5 and so on and n equal to infinity। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर कहां से भी जंप करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में जो भी लाइट एमिट होगा वो लाइट कौन सी, जो वेवलेंथ मिलेगा और फ्रीक्वेंसी मिलेगा कौन से रीजन में रहेगा, यूवी रीजन। उसके बाद
अगर हमारा लाइट कहां से भी एमिट करेगा, लेकिन अगर वो आ रहा है सेकेंड एनर्जी लेवल पे, देखो लाइट एमिट थर्ड से, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर लेवल पे चला गया था, लेकिन हायर लेवल पे चलाने में रिटर्न कहां पे हो रहा है, रिटर्न कहां पे हो रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग टू द सेकेंड एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे चला गया था, बट नाउ द इलेक्ट्रॉन इज रिटर्निंग बैक टू द सेकेंड एनर्जी लेवल। और सेकेंड एनर्जी लेवल जो ये जो था, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पे भी चला जाएगा, लेकिन जब लाइट एनर्जी एमिट करेगा तो कहां पे आएगा, सेकेंड एनर्जी लेवल पे अगर आएगा। तो इनके बारे में स्टडी किया था बाल्मर, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, बाल्मर सीरीज। एंड बाल्मर सीरीज में यहाँ पे जो लाइट एमिट करेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ आप मेजर करोगे, दैट कम्स इन द विजिबल रीजन। तो यहाँ पे जो कलर, मतलब यहाँ पे जो कलर है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन ये कलर हमें दिखाई देंगे। कौन सा कलर है, विजिबल रीजन। विजिबल मतलब विबजॉर, विबजॉर मतलब ये कलर हमारा रहेगा रेड, तो ये कलर हमारा रहेगा वायलेट। विबजॉर ऐसे अलग अलग कलर हमें दिखाई दे देंगे। बाल्मर सीरीज मतलब सबसे लोएस्ट। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो मेरा यहाँ पे ये जो रेज है, इसका क्या एनर्जी कैसा रहेगा, इसका एनर्जी रहेगा मिनिमम। मैं यहाँ पे ऐसा एरो करके निकाल रहा हूँ। यहाँ पे इस लाइन के लिए, मतलब व्हाट इज बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर लेवल पे चला गया था, लेकिन रिटर्न होते समय कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, सेकेंड एनर्जी लेवल पे रिटर्न हो रहा है। मतलब यहाँ पे N1 मतलब N1 2 रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, 2 पे रिटर्न हो रहा है। और N2 कहाँ से रिटर्न होगा, थर्ड से रिटर्न होगा, फोर्थ से रिटर्न होगा, फिफ्थ से रिटर्न होगा, और इट में रिटर्न फ्रॉम द इंफिनिटी। इसका मतलब ये हमारा थर्ड, मतलब ये रहेगा हमारा फर्स्ट लाइन फॉर बाल्मर सीरीज, ये हमारा रहेगा सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ये हमारा रहेगा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। देखो मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भी चला जाएगा, लेकिन रिटर्न कहाँ पे होगा, सेकेंड एनर्जी लेवल पे रिटर्न होगा। तो उस सीरीज को हम लोग नाम क्या देंगे, बाल्मर सीरीज। और ये जो यहाँ पे जो भी लाइट एमिट होगा, उस लाइट का अगर आप फ्रीक्वेंसी या अगर वेवलेंथ आप कैलकुलेट करते हो, तो कौन से रीजन में आ रहा है, विजिबल रीजन में आएगा। विजिबल रीजन मतलब विबजॉर में आ जाएगा, मतलब ये कलर हमें दिखाई देंगे, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाल्मर सीरीज इंपॉर्टेंट है। और रिटर्न कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिटर्न होगा, थर्ड से रिटर्न होगा। तो ये हमारा इसके लिए बाल्मर सीरीज के लिए ये हमारा फर्स्ट लाइन रहेगा, ये बाल्मर सीरीज के हमारे सेकेंड लाइन रहेगा, और बाल्मर सीरीज का ये हमारा थर्ड लाइन रहेगा। थर्ड लाइन ये हमारा सेकेंड लाइन, और ये हमारा फर्स्ट लाइन। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सपोज दे विल से इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन, इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम द सेकेंड लाइन, मतलब N2 कितना लेना है आपको, 4 लेना है। इन बाल्मर सीरीज इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मतलब कहां से जंप कर रहा है, N2 इक्वल टू 5, ये हमें मालूम है। और यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये स्मॉलर ट्रांजिशन है, तो इसके लिए एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम एनर्जी रहेगा, मिनिमम एनर्जी रहेगा, लेकिन वेवलेंथ कैसा रहेगा, लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। और लेकिन ये जो हमारा दूसरा ट्रांजिशन है, यहाँ पे जो बड़ा वाला ट्रांजिशन है, उसके लिए अगर आप देखोगे तो उसके लिए हमारा एनर्जी कैसे रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, लेकिन वेवलेंथ कैसा रहेगा, शॉर्टेस्ट। वेवलेंथ हमारा शॉर्टेस्ट रहेगा, बिकॉज लार्जर ट्रांजिशन के लिए एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, एंड वी नो दैट एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा वेवलेंथ शॉर्टेस्ट रहेगा। ओके अभी सिमिलरली अगर हमारा लाइट कहां से भी जंप करेगा, लेकिन जंप करके कहां पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, लाइट कहां से भी जंप करेगा और थर्ड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है। और अगर हमारा लाइट थर्ड पे आ रहा है, देन दैट सीरीज
द फर्स्ट वाला कौन सा सीरीज था? लेमन सीरीज और लाइमन सीरीज। सेकेंड वाला था बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के बाद नेक्स्ट सीरीज जो हमारा आ रहा है दैट इज द, ये हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा, लेकिन जंप कहां पे करेगा? थर्ड पे। देन इट इज कॉल्ड एज पाश्चन सीरीज, PASHEN, पाश्चन सीरीज। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन आएगा कहां पे? फोर्थ पे। तो इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन आएगा फोर्थ पे, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड एज ब्रैकेट सीरीज। इसका नाम है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट मतलब और इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन आएगा फिफ्थ पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर आएगा फिफ्थ पे, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड एज फुंड। P साइलेंट है, फुंड सीरीज, इट इज कॉल्ड एज अ फुंड सीरीज। का और एक सीरीज है लेकिन ठीक है हमारे बुक में इसने इसके बारे में नहीं दिया, तो क्या मालूम है। और ये अलग अलग साइंटिस्ट के नाम थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था। और ये जो सारे रेज है वो हमें कहाँ पे दिखाई देंगे? IR रीजन। मतलब इनका जो ये जो लाइट एमिट होगा यहाँ पे, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी या उस लाइट का फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कौन से रीजन में चला जाएगा? इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा। कौन से रीजन में चला जाएगा? इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा। इंफ्रारेड मतलब यहाँ पे जो भी आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे या जो भी आप फ्रीक्वेंसी तीनों के लिए कैलकुलेट करोगे वो कौन से रेंज में आ जाएगा? इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। तो हमें इतना ही मालूम रखना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन अगर लेमन फर्स्ट एनर्जी लेवल पे अगर आ रहा है तो उसे क्या बोलोगे? लेमन सीरीज और लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन सेकंड पे अगर आ रहा है तो उसे क्या बोलना है? बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे कलर हमें दिखाई दे देंगे, इसलिए उसका नाम है विजिबल रीजन। ओके, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन थर्ड एनर्जी लेवल पे अगर आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? पार्शियल सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा लेकिन अगर फोर्थ एनर्जी लेवल पे आ रहा है तो उसे क्या बोलोगे आप? ब्रैकेट सीरीज। और इलेक्ट्रॉन कहां से भी जंप करेगा फिफ्थ एनर्जी लेवल पे अगर आ रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज बोल सकते हो। तो ये अलग अलग सीरीज है। ओके, तो अभी हमें देखना है कि ये जो लाइट, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो लाइट एमिट करेगा, फिर उस लाइट का हमें वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? उस लाइट का वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है? ओके, तो उसके बारे में हमें देखते हैं वेवलेंथ और लाइट कैसे देखना है। तो सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट दैट, आई विल जस्ट टेक द अदर पेज। To calculate wavelength and frequency of transition. To calculate the wavelength and frequency of transition of electron from higher energy level to lower एनर्जी लेवल। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में अगर है तो उसको अगर यहाँ पे आना है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट विल एमिट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन हमारा हायर लेवल पे है, कहाँ पे आ रहा है? लोअर लेवल पे। तो एनर्जी एमिट करेगा, फिर उस एमिट एनर्जी का वेवलेंथ कितना रहेगा या उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना। एनर्जी हमें मालूम रहेगा तो उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अभी देखो हमें मालूम है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। 1 मिनट, अभी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट is given by the formula, and what is the energy of the electron?
that is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 Z square upon N square joule per atom. Energy of the electron in the nth orbit is given by which formula? Minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 Z square upon N square. Now I'll say we have to calculate for which atom? For hydrogen atom. Because हमारा जो बोर्स थ्योरी था वो खाली किसके लिए एप्लीकेबल था? फॉर हाइड्रोजन एटम. और हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू 1. एटॉमिक नंबर Z इज 1. तो Z अगर 1 रहेगा तो 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा. तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट इक्वल टू कितना आएगा? माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू माइनस 18 इंटू एटॉमिक नंबर 1. 1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय first orbit n1 square. Energy of the electron in the first orbit given by which formula? Minus 2.18 into power 10 raised to minus 18. Z का वैल्यू 1 था, 1 स्क्वायर 1 आ गया and 1 स्क्वायर. Similarly, energy of the electron in the second orbit is minus 2.18 into 10 raised to minus 18 into Z. हाइड्रोजन के लिए है तो एटॉमिक नंबर 1 स्क्वायर इज 1 एंड सेकेंड ऑर्बिट मतलब n2 स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट मतलब n2 स्क्वायर. करेक्ट. स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes. ओके. तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट. अभी हमारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जंप करेगा. इलेक्ट्रॉन क्या एमिट करेगा? एनर्जी एमिट करेगा. So energy emitted will be what? Delta E, and delta E is given by which formula? E2 minus E1. डेल्टा मतलब यहाँ पे एनर्जी रहेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी रहेगा वो रहेगा E2 और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रहेगा वो रहेगा E1. तो इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग एनर्जी. इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर रहा है? सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है. तो चेंज इन द एनर्जी E2 minus E1. E2 minus E1. And then here delta E, E2 is minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 divided by n2 square. माइनस, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला में माइनस है, इनटू ब्रैकेट और ये भी वैल्यू माइनस में आ रहा है तो एक यार लिखोगे माइनस 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन n1 square. See, E2 means what? Energy of the electron in the second orbit. E1 means what? Energy of the electron in the first orbit. And then here we can say minus 2.18 into 10 raised to minus 18 divided by n2 square. Minus minus will become plus 2.18 into 10 raised to minus 18 upon n1 square. अभी मैं क्या करूंगा, इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ. रीअरेंज मतलब ये टर्म फर्स्ट लिख देता हूँ और ये सेकंड लिख देता हूँ. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2.18 into 10 raised to minus 18 upon n1 square minus 2.18 into 10 raised to minus 18 upon n2 square. And now here I will take this number common. यहाँ पे भी 2.18 into 10 raised to minus 18 है, यहाँ पे भी नंबर, तो नंबर में कॉमन लूंगा. So change in the energy equal to, I'll take 2.18 into 10 raised to minus 18 common. So in the what is remaining in the bracket? 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. देखो यहाँ पे बचेगा 1 upon n1 square और यहाँ पे बचेगा 1 upon n2 square. तो change in the energy आ गया. Now delta E. Now delta E, but यहाँ पे एनर्जी किसमें था? तो एनर्जी का हमारा यूनिट था जूल. यहाँ पे हमारे पास एनर्जी का यूनिट था जूल. क्यों जूल? तो हमारा फॉर्मूला ही स्टार्टिंग में था minus 2.18 into 10 raised to power minus 18 Z square upon n square into joule per atom.
अभी डेल्टा ई कैन बी रिटन एज व्हाट? डेल्टा ई कैन बी रिटन एज व्हाट? एच न्यू. So h nu is equal to 2.18 into 10 raised to minus 18 into bracket. मतलब हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर मुझे n1 और n2 मालूम है, इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है और कहां तक जंप कर रहा है अगर मुझे मालूम है, तो आई कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन. इलेक्ट्रॉन सेकेंड लेवल से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो लाइमन सीरीज. इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकेंड पे जंप कर रहा है तो बाल्मर सीरीज. इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे जंप कर रहा है तो पार्शियल सीरीज. तो इलेक्ट्रॉन कहां से जंप कर रहा है, कहां तक जंप कर रहा है अगर मुझे मालूम रहेगा तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट? चेंज इन द एनर्जी. मतलब एनर्जी कितना चेंज हो रहा है. डेल्टा भी एनर्जी इज गिवन बाय व्हिच फार्मूला? h nu. So 1 upon n1 square upon 1 upon n2 square. Now h nu, h is the Planck's constant, तो h nu can be written, मतलब अगर मैं यहाँ से डिवाइड बाय h करूंगा तो मुझे न्यू फ्रीक्वेंसी मिलेंगी, बट h nu can be written as what? c upon lambda. तो अगर मैंने यहाँ पे h से डिवाइड किया तो मुझे न्यू मिल सकता है. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी मिल सकता है, लेकिन न्यू की जगह मैंने c अपॉन लैम्बडा लिखा तो मुझे अभी यहाँ पे क्या मिलेगा? 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. एक मिनट स्टूडेंट. यस. और फिर यहाँ पे h मतलब प्लांक्स कांस्टेंट. सो h प्लांक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है h का? 6.626 इंटू 10 रेज़ टू 30 माइनस 34 जूल सेकेंड. ये जूल में. c इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 इंटू 10 रेज़ टू 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन हम इसे यूज करेंगे 3 इंटू 10 रेज़ टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ द लाइट. तो अगर हमारा स्पीड ऑफ द लाइट, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? लैम्बडा निकलवाना है. तो अभी देखो यहाँ पे लैम्बडा का यूनिट क्या है, और लैम्बडा हो गया. फिर यहाँ पे h 1 अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? h डेल्टा ई के जगह मैंने क्या लिखा था? h न्यू लिखा था. न्यू के जगह मैंने क्या लिखा था? c लैम्बडा लिखा था. c लैम्बडा, और c लैम्बडा में अभी ऐसा लिखूंगा 1 अपॉन लैम्बडा ऐसे रखा इक्वल टू 2.18 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 18 डिवाइडेड बाय, देखो 1 अपॉन लैम्बडा ऐसे रखा तो h यहाँ पे डिवाइड करेगा, c भी यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे आएगा hc इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. मैंने यहाँ पे hc को यहाँ पे लेके, and I will substitute the value of the hc. So here I'll get 2.18 10 raised to minus 18 h Planck's constant 6.626 10 raised to minus 34. देखो ये एनर्जी जूल में है, ये एनर्जी जूल सेकेंड में, और इनटू c मतलब स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड into bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये जूल और ये जूल कैंसिल हो जाएगा, ये सेकेंड और ये सेकेंड रेज़ टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड भी कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू 1 upon lambda is equal to 2.18 into 10 raised to power minus 18 divided by 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 10, और यहाँ पे सेंटीमीटर बचा 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, and 1 upon lambda is called as the nu bar. 1 upon lambda is called as the nu bar, and nu bar is called as what? Wave number. And what is wave number? Number of wave produced per centimeter. So 1 upon lambda equal to,
अगर मैं इनका सबका अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद यहाँ पे मुझे एक नंबर मिलेगा, दैट इज 109677। 109677 मतलब ये नंबर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया मैंने, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 को डिवाइड कर दिया, कौन से नंबर से डिवाइड कर दिया, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻10 ये डिवाइड कर दिया, फिर आंसर ये नंबर आ गया, और इंटू ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे अपॉन सेंटीमीटर था तो ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, पर सेंटीमीटर। ये हमारा फॉर्मूला बना वेव नंबर का, ये हमारा फॉर्मूला बना वेव नंबर का। और ये जो हमारा ये कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट। ये जो हमारा कांस्टेंट है, वी विल कॉल दिस कांस्टेंट एज व्हाट, रेडबर्ग कांस्टेंट। ये हमारा मतलब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, देखो अगर मुझे न्यू बार मिला, न्यू बार मतलब वेव नंबर मिला, तो वेव नंबर से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, वेवलेंथ। और अगर मुझे वेवलेंथ मिला, अगर मुझे वेवलेंथ मिला तो यहाँ पे h इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा, फिर उससे मुझे क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। सो ऑल दिस फॉर्मूलाज वी कैन यूज टू कैलकुलेट व्हाट, एनर्जी। इवन अगर मैंने न्यू बार मिला तो न्यू बार से मुझे क्या मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा, और लैम्बडा से मुझे क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो ऑल द टर्म्स कैन बी क्या, मतलब अगर हमारा लाइट, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी, देखो सिंपल कंसेप्ट, आज का सिंपल कंसेप्ट क्या था हमारा, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे जा रहा है, और हायर लेवल पे जाने के बाद वापस अपने नॉर्मल लेवल पे रिटर्न आ रहा है। लेकिन रिटर्न कहाँ पे आ रहा है, अगर एनर्जी लेवल 1 पे आएगा तो लेमन सीरीज, एनर्जी लेवल 2 पे आएगा तो बाल्मर सीरीज, एनर्जी लेवल 3 पे आएगा तो पाश्चन सीरीज। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, उससे हमें उसका क्या पता चल रहा है कि उसे कितना एनर्जी एमिट किया। एनर्जी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं वेव नंबर, लैम्बडा एंड फ्रीक्वेंसी, तीनों चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग था हमारा, टू कैलकुलेट द लैम्बडा, वेवलेंथ एंड द न्यू ऑफ द ट्रांजिशन, एंड उससे ही हमें और क्या मिलेगा, वेव नंबर, और क्या मिलेगा हमें, वेव नंबर, लैम्बडा। तो हम वेव नंबर कैलकुलेट, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हमें बाद में करने, न्यूमेरिकल्स हमें बाद में करने। ओके, और एक कंसेप्ट है वो मैं अभी पढ़ाता हूँ, और एक फिर उसके बाद। ओके, सो समझ में आ रहा है आपको, जब मैं थोड़ा न्यूमेरिकल करूंगा तो एक कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी तक थोड़ा क्लियर है क्या? ओके, Yes. एक लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हेडिंग पढ़ाओ, बाद में नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर के बेस। पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन। हाईएस्ट एनर्जी लेवल 4, हाईएस्ट एनर्जी लेवल 4 मतलब एनर्जी लेवल 4 पे। ओके, एक मिनट। तो अगर मतलब मैंने ऐसा बोला कि एनर्जी लेवल 4 है, मतलब यहाँ पे N11, N12, 3, 4, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल पे है। हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4th एनर्जी लेवल पे है, तो 4th एनर्जी लेवल से कहाँ पे रिटर्न करेगा, देखो 4th से रिटर्न करेगा यहाँ इधर। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी लेवल पे रहेगा तो 4th एनर्जी लेवल से उसे कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हम लोग बोल सकते हो कि डायरेक्ट 4th से वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे इधर से इधर चला जाएगा, और इधर से इधर चला जाएगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे रिटर्न कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज।
और ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, और मैं एक काम करता हूँ, एनर्जी लेवल हम लोग 5th ले रहा हूँ मैं, 5th। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल पे, 5th पे, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5th एनर्जी लेवल पे है, तो 5th एनर्जी लेवल से यहाँ पे आने के लिए कितने अलग अलग तरीके से आ सकता है। तो हमें क्या था, पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, कितनी लाइंस पॉसिबल है। ओके, तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 5th से आ रहा है फर्स्ट पे, 4th से आएगा फर्स्ट पे, या अलग अलग ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक मिनट स्टूडेंट, थोड़ा और इजी करके देखता हूँ मैं। यस, यहाँ पे एक मिनट, ये जो टॉपिक्स है वो मैंने बाद में नेक्स्ट लेक्चर में कर लेता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग मतलब ये जो पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन है, ये दिस पार्ट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कितने लाइंस पॉसिबल होंगे। अभी तुम्हें खाली क्या ध्यान में रखना है, कि यही ध्यान में रखना है कि लाइमन सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे जंप करेगा, बाल्मर सीरीज में कहाँ से कहाँ पे जंप करेगा, पास्टन सीरीज में कहाँ से कहाँ तक जंप करेगा, और ब्रैकेट और पी फंड। लेकिन नॉर्मली हम लोग पहले दो वाले यूज करते हैं, डायमंड सीरीज एंड बाल्मर सीरीज। डायमंड सीरीज कहाँ पे दिखाई देगा, यूवी रेडिएशन में दिखाई देगा, और बाल्मर सीरीज कहाँ पे दिखाई देगा, विजिबल रीजन। और पॉसिबल स्पेक्ट्रम की जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको। ठीक है, तो कुछ आपको पूछना है? अच्छा, मैं जो आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, जो आपके पास शीट्स है उसमें से आप सॉल्व कर रहे हो क्या? ठीक है, कुछ डाउट नहीं है? इसका जो No, रिमेनिंग sir. पार्ट, हाँ, इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स है दैट विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और ये आगे वाला कितने लाइंस पॉसिबल हो गए वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे हम।